All right, G. So let's start and welcome everyone to this session on how to increase your profits. Profit is something that we all crave for, and that is what we are going to talk to you about. Am I loud and clear to everyone? Am I audible? Thank you. Yes, yes, sir. Yes. So before moving on further, let me just give you a brief background on who we are, what Action Coach is. World abundance through business re-education. Since 1993, Action Coach business coaches have lived that vision by helping business owners across the planet build great companies, create more jobs, and truly grow their communities. Real people getting real results. We've always believed that being in business should give you more life, and right now we believe in something even greater. The abundance of those amazing business owners, the abundance of the employees in those companies, the abundance of providing free education to every business owner and every local or national business group globally. The abundance of being there for you and every business that needs us right now. So we are Action Coach. We are the world's number one business coaching company. We are present in 90 countries now with more than 1,000 coaching offices worldwide. The company is privately owned and founded by Mr. Brad Sugars, who is an entrepreneur and author and a serial investor. हमारा विजन है to create business world abundance through business re-education. दुनिया में abundance पैदा करना business को re-education provide करके लोगों को. And we coach over 30,000 businesses every week across India, USA, UK, Australia, New Zealand, Malaysia, Vietnam, Philippines, South Africa, and many other countries. So 30,000 SME and MSME business owners across the globe, we coach on a weekly basis. A bit about me. My name is Amit Bansal. I'm your coach for the day. I'm the firm owner for Chandigarh, Tri-City and Ludhiana for Action Coach USA. I'm a business coach and a corporate trainer and a certified public speaking coach. I also have an accreditation from the International Coaching Federation for the PCC level of life and leadership coaching. I'm also certified facilitator trainer and author of the Amazon best-selling book. एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। सर, मैं दूसरे पे ज्वाइन कर रही हूँ, सैमसंग वाले पे मैं इसको लीव कर रही हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू। प्रॉफिट सिंक होल, 8 pitfalls, वो 8 गलतियां जो आपके बिजनेसेस को छोटा ही रखती हैं. And we have imparted more than 625 trainings on different facets of business, life skills, soft skills, entrepreneurship, and interpersonal relationship. And this is me welcoming you all to the 5 ways to massive results in business. Let's find out what is keeping you and your business from peak performance in terms of profit. I would like to thank you first of all. I like to thank you and appreciate the investment that you are making today with this workshop, with this seminar, because we really believe that time is your most valuable asset. हम सबको मालूम है हम और ज्यादा पैसा बना सकते हैं, बट हम टाइम और ज्यादा नहीं बना सकते. So that is why I want to thank you for investing your time today with us. बिजनेस का मतलब आज की डेट में लोगों ने बिजीनेस बना के रखा है. सब लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि वी आर वेरी बिजी, वी डोंट हैव टाइम फॉर फैमिली, वी डोंट हैव टाइम फॉर अवरसेल्व्स, वी डोंट हैव टाइम फॉर ट्रेवल, रिक्रिएशन, नथिंग. एंड दे आर मोर ऑफ बिजी देन डूइंग बिजनेस. अगर हम लोग सेम चीजें हर रोज बार बार करते रहेंगे और ये एक्सपेक्ट करें कि हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, तो इसे आज की डेट में इंसैनिटी यानी कि पागलपन कहा जाता है.
सो दैट इज वाई इफ यू गो बैक टू योर ऑफिस टुमारो एंड वही सारी चीजें करो जो आपने कल भी की थी और फिर एक्सपेक्ट करो कि आपके रिजल्ट्स बदल जाएं, वो पॉसिबल नहीं और ना ही वैसा होगा, राइट? सो दैट इज वाई आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड here today, because you might go away with lot of actionable strategies that you can start implementing from tomorrow onwards in your business. And I assure you that I am going to reward your time that you are spending here on a Sunday evening away from your family, जो आप अपना टाइम लगा रहे हैं. I assure you कि मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सिंपल, इजी और फास्ट टेक्निक्स जिनसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, वो आज आपके साथ शेयर करने वाला, राइट? लेट मी पुट यू वन क्वेश्चन एंड यू कैन ऑल आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज. अगर आप अपने बिजनेस के हर एक्सपेंस को 2% कम कर दो इस साल, राइट, तो क्या आपकी बॉटम लाइन इंप्रूव हो जाएगी? आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज. क्या आपकी बॉटम लाइन जो है, जो आपका है, वो इंप्रूव हो जाएगा? ग्रेट. क्या आप, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग. अगर आप एक्सपर्ट हो जाओ कुछ नई सेल्स और मार्केटिंग टेक्निक्स में, तो क्या आपकी बॉटम लाइन इंक्रीज हो सकती है? ऑसम. अगर आप अपनी दी जाने वाली फेसबुक एड्स का जो रिस्पॉन्स रेट है उसको बढ़ा दो, तो क्या आपकी बॉटम लाइन इंप्रूव हो सकती है? अगर आप फेसबुक पे एड्स देते हैं या आप क्लासिफाइड्स में देते हैं, कहीं पर भी आप देते हैं तो ग्रेट, थैंक यू. अगर आपको मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊं जिसके थ्रू लोग आपको और ज्यादा बिजनेस रेफर करें, तो क्या आपकी बॉटम लाइन इंप्रूव हो सकती है? वेल, आई वॉन्ट वेट फॉर योर आंसर बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट यस, द बॉटम लाइन विल increase, and today we are going to learn just that. But when I say we are going to learn just that, there is a very tricky thing about learning. You know, it is said कि अगर आप एक किसी इंसान को एक मछली दे दो तो आप उसके एक दिन के खाने का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा दो तो आप उसकी जिंदगी भर की भूख की जो मुसीबत है उसको कम कर सकते हो. जो भी इंसान लर्न नहीं कर रहा है वो स्टेगनेंट हो जाता है और फिर ग्रो नहीं कर पाता. यही चीज हमारे बिजनेस पे भी एप्लीकेबल है. यू शुड ऑलवेज वर्क हार्डर ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ देन यू वर्क ऑन योर जॉब. यस, यू हर्ड इट राइट. लोग कहते हैं काम करो, बहुत मन लगा के काम करो, बहुत मन लगा के काम करो. हम कहते हैं वर्क हार्डर ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ, मच हार्डर देन यू डू ऑन योर जॉब, if you really want to get quick results. अगर आप खुद पर काम करते हैं, अपना नॉलेज बेस बढ़ाते हैं, which I'm sure you are here for tonight as well, then हमारी जो ग्रोथ का पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? जिंदगी में everybody has a very certain average value या point of power. जो लोग इस point of power के नीचे रहते हैं, they stay in the state of blames, excuses and denials. नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं था. I was not born into a rich family. मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था. मेरी टीम ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई. हमने बहुत अच्छा माल बनाया था, लेकिन सब जिसको हमने सप्लाई करना था उसने उसमें डिफेक्ट्स निकाल दिए. You know, if you keep on giving blames, excuses and denials, तो आप हमेशा पावरलेस ही रहेंगे और ग्रो नहीं कर पाएंगे. If you want to grow, you need to stay above the point of power, जहां पर हम अपनी हर चीज के लिए ओनरशिप लेंगे, हर चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी लेंगे, and we will say here that yes, I am responsible for whatever state my business is in. मेरा जनरल मैनेजर नहीं, मेरा फोरमैन नहीं, मेरा सुपरवाइजर नहीं, मेरी रिसेप्शनिस्ट नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने बिजनेस के, आज भी, कल भी और फ्यूचर में भी. दैट इज वेयर द प्रोग्रेस हैपन्स, बिकॉज दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग पावरफुल, अनलाइक द स्टेट ऑफ बीइंग पावरलेस, वेयर यू फील कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं.
हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ड इन लाइफ? लेट मी जस्ट सी द रेज ऑफ हैंड्स. क्या कभी आपने जिंदगी में कभी कोई फेलियर देखा है? कुछ भी, एनी फेलियर. स्कूल में कभी मार्क्स कम आए हों, रेस में भागे हों लेकिन 10th नंबर पे आए हों, सबने देखा है. किस किसने जिंदगी में 2 फेलियर देखे हैं? वो दोनों हाथ खड़े कर लो. और जिस जिसको लगता है कि इंसान तो बना ही मिस्टेक्स से है, वो टांगे भी ऊपर कर लो अपनी. आपके लिए आसान है, आप लोग तो बैठे हो, मैं तो खड़ा हूं, मेरे लिए मुश्किल है. राइट? सो यस, जिंदगी में फेलियर फेल होना नहीं है. फेलियर कब आता है जिंदगी में? फेलियर तब आता है व्हेन यू फेल टू पार्टिसिपेट. जब आप पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, देन यू स्टार्ट फेलिंग एक्चुअली. सो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आज आप अपने टाइम का, अपने फोकस का, अपने कॉन्सेंट्रेशन का 100% देंगे, तो मैं भी अपना 100% दे पाऊंगा और आप आज यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे. देखिए, बिजनेस, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आज अगले 1-1.5 घंटे में घुमाऊंगा और आपका बिजनेस जो है वो स्काई रॉकेट कर जाएगा. राइट? इट इज ऑलवेज एक्शनेबल आइटम्स दैट वी कैन डिस्कस. राइट? बट द ओनस इज ऑन यू कि आप क्या इंप्लीमेंट करते हैं. राइट? लर्निंग जो है, इट शुड ऑलवेज 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 बी फन. हो सकता है आज हम कोई बात करें तो आपको लगे कि यार ये तो मुझे पता है, इसमें कुछ नया नहीं है. यू नो ऑफ ऑल दोस टीनेज, जिन जिनके बच्चे हैं 8, 9, 10 ईयर्स के, या जिनके भाई बहन हैं, उन्होंने देखा उनको कुछ भी बताने की कोशिश करो, उनका क्या जवाब आता है? मुझे पता है, प्लीज मुझे मत बताओ, आई नो. राइट? लेकिन जब वो बच्चे ये बोलते हैं ना कि आई नो, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नया सीखने की क्लोज कर देते हैं. एंड दैट इज वाई आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आज आपको किसी बात पे लगता है कि यू नो, यू स्टिल टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है यार, इजंट दैट इंटरेस्टिंग, सुनते हैं कि इनका क्या पर्सपेक्टिव है इस बात के बारे में. बिकॉज लर्निंग शुड ऑलवेज बी फन. इफ यू आर नॉट हैविंग फन while learning, then you can't actually learn. You have to be willing to learn. So having said that, let me just take you straight कि जिंदगी में सक्सेस कैसे मिलती है. क्या कोई बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर, हाउ डू यू फाइंड सक्सेस इन लाइफ? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द वे टू गेन सक्सेस इन लाइफ? Learning and implementing, says Abhay. Okay, thank you, Abhay. Waiting for other answers also. Friends, let's keep this very interactive. Try, and try. Actions. क्या बात है रमेश जी? Thank you. Yes. So learning, implementing, said Abhay. Trying, says Yugal ji. And actions, say रमेश जी. दोस्तों, जिंदगी के अंदर सक्सेस जो है वो हमें जब मिलती है तो उसके लिए व्हाट वी सजेस्ट इज देयर इज अ फॉर्मूला. सक्सेस ऑलवेज कम्स विद अ फॉर्मूला. और वो सक्सेस फॉर्मूला जो हमारा है, दैट इज DGLPA. DGLPA. ड्रीम्स. D स्टैंड्स फॉर ड्रीम्स. ड्रीम्स क्या है? आपके सपने. 15 से 20 साल बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं? आज की डेट में वो जितने मर्जी बड़े लग रहे हो कि मेरे पास 2000 गज की कोठी होगी, प्रोबेबली मेरे पास मर्सिडीज होगी, मेरी टर्नओवर जो है वो 50 CR होगी, 100 CR होगी, 500 CR होगी. कैसा भी वो ड्रीम हो, कितना भी आपको बड़ा लगे, बट वही सपना है जो जागती आंखों से लगेगी. वही सपना है जो जागती आंखों से. सर वॉइस नहीं आ रही है. इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय वॉइस, युगल जी? नहीं सर, वॉइस No, sir, it's okay, sir. I think उनके Not mobile में थैंक यू. मैम, प्रोबेबली देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड, प्लीज आप चेक करें. सपने वही हैं जो खुली आंखों से तो लगे कि पूरे नहीं हो सकते. दैट इज व्हाई वी कॉल देम ड्रीम्स. राइट? जब हम ड्रीम्स बनाते हैं आपने कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे क्या चाहिए, उसमें से देन वी क्रिएट अवर गोल्स. गोल्स क्या हैं? गोल्स हमारे शॉर्ट टर्म
3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 ईयर बाद हम कहां पहुंचना चाहते हैं, दे आर अवर गोल्स। लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, आपके हिसाब से कौन से गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं? ईयरली गोल्स इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली गोल्स इंपॉर्टेंट है, मंथली गोल्स इंपॉर्टेंट है, कि डेली गोल्स इंपॉर्टेंट है? आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज। कौन से गोल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साल के, क्वार्टर के, मंथ के रोज के? ओके, डेली, 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 एब्सोल्युटली ग्रेट। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द लवली ऑडियंस। द डेली गोल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स। व्हाई? अगर आप अपने डेली गोल्स पूरे कर लेते हो तो आपके वीकली गोल्स विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अगर आपके वीकली गोल्स पूरे हो रहे हैं तो मंथली गोल्स ऑटोमेटिकली पूरे होंगे, मंथली पूरे होते हैं तो क्वार्टरली, और क्वार्टरली हो रहे हैं तो साल के आपके गोल्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। वंस यू हैव सेट दीज गोल्स, राइट, जब आपने वो अपने 3, 2, 1 साल के, क्वार्टर के गोल्स बना लिए, उसके बाद आपके गोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या नई चीजें सीखने की जरूरत है टू अचीव देम। लेट मी जस्ट let me just mute all once. Thank you. तो जब हमारे गोल्स हैं, हमारे गोल्स जितने बड़े होंगे उनसे हमें यह पता लगता है कि हमें क्या नया सीखने की जरूरत है, सो दैट हम उन गोल्स को पूरा कर पाए। अगर मेरा गोल है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का गोल है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वी ऑल नो कि अब उन्हें एमबीबीएस करने की जरूरत है, उन्हें +1 +2 में मेडिकल लेना पड़ेगा, राइट? अगर किसी को लगता है कि वो शेफ बनना चाहते हैं, सो उनको जो अपने शेफ culinary स्किल्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप आगे चल के बहुत अच्छी गाड़ी चलाओ और एक प्रोबेबली एक रेसिंग कार ड्राइवर बन जाओ, तो यू नीड टू लर्न हाउ टू ड्राइव, राइट? तो आपके जो गोल्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या नया सीखने की जरूरत है। व्हेन यू फाइंड आउट कि आपको क्या नया सीखने की जरूरत है, वहां से आपको बनाना पड़ता है फिर एक प्लान, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दोज गोल्स। सीखकर हम अपने प्लान्स बनाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब वो प्लान्स बन जाते हैं, वी नीड टू act on those plans. We need to take action. And when you take action based on the plans that you have made, which are based on the learnings that you had, which was based on the goals that you want to achieve to fulfill your dreams, then success happens in life. And that is why the formula for success is dream times your goals times your learning times your plans times your action. और ये मल्टीप्लीकेशन है। जितने ज्यादा एक्शन, जितने ज्यादा प्लान्स, जितनी ज्यादा लर्निंग, जितने ज्यादा बड़े गोल्स आप डालेंगे इसके अंदर, उतनी ज्यादा सक्सेस हमें मिलेगी। बट अगर आप इसमें रियलाइज करो, इट हैज 2 पार्ट्स। वट आई वॉन्ट टू अचीव, मेरे ड्रीम्स और गोल्स क्या हैं, वो मेरे लिए हैव हो गया, वट आई वॉन्ट टू हैव इन लाइफ, राइट? उसके लिए मेरे क्या लर्निंग्स हैं, क्या प्लान्स हैं और क्या एक्शंस हैं, वो मेरा हो गया डू पार्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट? मेरा हैव क्लियर है, व्हाट आई वांट टू हैव, मेरा डू क्लियर है, मुझे क्या करना पड़ेगा लाइफ में। लेकिन सक्सेस सिर्फ डू और हैव से नहीं मिलेगी, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज योर बीइंग। दैट इज योर बीइंग। अकेला हार्डवर्क करने से अगर सक्सेस मिल जाती तो हर लेबरर जो है वो रिच होता। अगर सिर्फ सपने लेने से सक्सेस मिल जाती तो मुंगेरी लाल जी भी बहुत अमीर होते। When you plan to have something in life, what you put into those plans, how your being changes, that will decide what you are going to have in life, right? हम लोग ह्यूमन डूइंग्स नहीं है,
हम लोग ह्यूमन हैविंग्स नहीं है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट? दैट इज व्हाई योर बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स थिंक अबाउट योर बिजनेस. क्या आप अपना बिजनेस चला रहे हैं? राइट आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज. Yes or no? Are you running your business? Yes, says Jugal ji. Yes, says Abhay ji. बाकी लोग बिजनेस नहीं चला रहे अपना? ओके, यस. और योर बिजनेस इज रनिंग यू. द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या आप अपना बिजनेस चला रहे हैं कि आपका बिजनेस आपको चला रहा है? नाउ व्हाट इज द आंसर? इज द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन आल्सो यस? अभय जी says second is right. Yes. If you are like most business owners, the business is driving us rather than us driving the business. ठीक है जी. मोस्टली लोग सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं. हम सब लोग वी आर जस्ट इनटू अ जॉब. वी आर नॉट डूइंग अ बिजनेस. वी आर जस्ट मेकिंग अ बिट मोर देन अवर एम्प्लॉइज. वी आर जस्ट मैनेजिंग वेल. और कई बार तो इतना तकलीफ होती है, कोई कोई हमारा जो बहुत पुराना एम्प्लॉय है वो हमसे ज्यादा टेक होम ले जाता है किसी किसी महीने. हमारे को उतने पैसे नहीं मिले होते जितने की वो अपनी सैलरी ले जाता है. उस दिन विचार आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो. किस किस को ये फीलिंग आती है? कैन रेज योर हैंड्स. कि जब हमारा कोई एम्प्लॉय किसी महीने बहुत अच्छी टेक होम ले जाता है तो हमें बड़ी फीलिंग आती है कि यार हम कर ही क्या रहे हैं. राइट, यस, आई हैड मल्टीपल टाइम्स. थैंक यू सो मच अभय जी फॉर बीइंग सो कैंडिड. यू नो, जैसे हमने पहले बात की, ब्लेम एक्सक्यूज डिनायल से बाहर आना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. सो यू आर ओनिंग दैट थिंग कि यस आई फील इट अ लॉट ऑफ टाइम. बिजनेस फेलियर का नंबर वन रीजन आपके हिसाब से क्या है? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया बट जल्दी ही वापस से वो अपनी जॉब में चले गए? डू यू नो एनीवन? यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स इफ यू नो एनीवन. एनीवन? कोई आपके रिश्तेदार, कोई आपका फ्रेंड जिन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस किया बट जल्दी ही घबरा के वापस बिजनेस में चले गए? यस, दिस हैपेंस बिकॉज लोग जो हैं वो बिजनेस का आर्ट नहीं सीखते. बिलीव मी ऑन दिस फ्रेंड्स. आज अगर आपका बच्चा टेनिस प्लेयर बनना चाहता है तो आप उसको टेनिस की एकेडमी में डाल देते हो. अगर आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है आप उसको क्रिकेट की एकेडमी में कोचिंग के लिए डाल देते हो. आपका बच्चा नॉन मेडिकल करना चाहता है, आईआईटी क्लियर करना चाहता है, आप उसको ट्यूशन लगा देते हो. मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट? लेकिन अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है तो मुझे बताइए कि उसके लिए कौन सी एजुकेशन, क्या एमबीएज फुलफिल कर रही हैं उस चीज को जो एक बिजनेस के लिए चाहिए? प्रोबेबली नॉट. जब भी कोई कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, नोबडी फील्स दिस नीड कि इस बच्चे को बिजनेस की कोचिंग दिलवानी चाहिए. एंड दैट इज द नंबर वन रीजन व्हाई बिजनेसेस फेल. यू नो, 80% ऑफ द बिजनेसेस दैट स्टार्ट वो पहले 5 सालों के अंदर बंद हो जाते हैं और उनमें से भी मेजर पोर्शन जो है वो पहले 2 सालों में ही बंद हो जाता है. उसका रीजन ही ये है कि लोग जो हैं वो समझते नहीं है कि क्या क्या हार्डशिप्स बिजनेस में आएंगी, या रेदर उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है जो उनको बता सके कि क्या क्या हार्डशिप्स आएंगी. दैट इज वेयर एक्शन कोच कम्स इनटू द पिक्चर, राइट? दैट इज वेयर एक्शन कोच कम्स इनटू द पिक्चर. हमारी जो डेफिनेशन है बिजनेस की वो क्या है? वी से बिजनेस क्या है? अ कमर्शियल profitable enterprise that works without you. कमर्शियल मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद मनी. प्रॉफिटेबल मीन जिसमें प्रॉफिट बन रहा है. एंटरप्राइज का मतलब जहां पे लोग जुड़े हुए हैं,
दैट वर्क्स विदाउट यू मीन्स जहां पे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, आपने स्टाफ को हायर किया है जो काम कर रहा है, या सिस्टम्स लगाए हैं जो काम कर रहे हैं. सो अ कमर्शियल प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज दैट वर्क्स विदाउट यू is how we define businesses. And we always say that remember to work on your business and not just in your business. क्या है आपका सपना? If I may ask you, the question is, आज के लिए अगर आप आज सोचते हैं, मेरे को नहीं बताना, चैट बॉक्स में नहीं लिखना, जस्ट राइट ऑन अ नोट पैड फॉर योर सेल्फ. आज की डेट में आपके बिजनेस का रेवेन्यू कितना है? प्लीज राइट ऑन द नोट पैड दैट यू हैव. एनुअल रेवेन्यू आपके बिजनेस का क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, रेवेन्यू, टर्नओवर बता दीजिए. डोंट राइट इन द चैट बॉक्स, मैंने किसी से पूछना नहीं है, जस्ट इट इज फॉर योर सेल्फ. आज आप कहां रहते हैं इज द सेकेंड क्वेश्चन. मैंने इसे कहां रहते हैं, घर का कितना साइज, क्या है क्या नहीं है, उस तरह से. आज आप कौन सा व्हीकल चला रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने आज कर रखी है, आपके अपकमिंग ट्रेवल प्लान्स क्या हैं, क्या आपकी फैमिली एंजॉय कर रही है, और आप कितना समय बिजनेस में लगा रहे हैं. लिखिए भी नहीं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये अपने आप में थॉट प्रोवोकिंग है. एंड 5 साल बाद इन क्वेश्चंस का आंसर क्या सेम रहने वाला है कि बदलने वाला है, इज व्हाट माय चैलेंज टू यू इज. 5 साल बाद क्या आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, आप कहाँ रह रहे होंगे, क्या चला रहे होंगे, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कहाँ आप ट्रेवल करेंगे, क्या आपकी फैमिली एंजॉय कर रही होगी, आप बिजनेस में कितना समय लगा रहे होगे. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू आंसर योरसेल्फ. एंड इफ देयर इज अ चेंज, you have to tell yourself how that change is gonna happen. How that change is gonna happen is something that you need to tell yourself. Are you all with me till now? Right? You know, diving straight into the topic से पहले एक mindset preparation बहुत जरूरी है. आप लोगों ने अपना संडे इवनिंग को टाइम निकाला है. आई रियली रियली वॉन्ट यू टू हैव दैट माइंडसेट टू लर्न. दैट इज वाई दीज इंट्रिगिंग क्वेश्चंस, नन ऑफ विच इज रॉन्ग. दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी बिजनेस ओनर. इट वॉज माई स्टोरी ऑल्सो आज से 5 साल पहले, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट दैट चेंज्ड बिकॉज आई लर्नड सम थिंग्स which now I am preaching also. But as I said, practice before you preach. Those who know me can tell me at least time का मेरे पास issue नहीं आता. If they know nothing else about me, they at least know this thing. Time का issue मेरे को नहीं आता. Irrespective of managing at least 3 verticals of business. Right? So, how much time you are working in business, how much revenue you are making and would be making, ये सभी questions मैंने इसलिए पूछे so that आप अपना mindset जो है वो प्रिपेयर कर सको फॉर द अपकमिंग थिंग्स. कन्वेंशनल बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? कन्वेंशनल बिजनेस में प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस. मैंने 1 लाख की सेल की, 60,000 का मेरा खर्चा हो गया. राइट? एवरीथिंग, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरीथिंग मिला के मेरा 60,000 का अगर खर्चा हो गया तो 40,000 इज माई प्रॉफिट. कन्वेंशनल बिजनेस यही बोलता है. राइट? बिकॉज कन्वेंशनल बिजनेसेस जो हैं वो सेल्स को इन्हीं 3 वेरिएबल्स पे देखते हैं, सेल्स, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट. इस अप्रोच में हर वेरिएबल जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके कारण हर बिजनेस या तो अपनी सेल को बढ़ाने की बात करता रहता है या एक्सपेंसेस को घटाने की बात करता रहता है ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर पाए. लेकिन एक्शन कोच का जो मॉडल है, एक्शन कोच में हम इस पुराने नैरेटिव से, इस नैरो व्यू से, इस पुरानी कन्वेंशनल सोच से दूर जाते हैं एंड वी ब्रेक
the sales variables into 5 separate components. 5 अलग अलग components में हम इनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ये सारे के सारे वेरिएबल्स इंडिविजुअली वर्क अपॉन किए जा सकते हैं और हम इनके ऊपर साइमल्टेनियसली या अलग अलग समय पे काम कर सकते हैं ताकि हमारी जो बॉटम लाइन है वो इंप्रूव हो सके. और इसी को एक्शन कोच बिजनेस कोचिंग मॉडल के अंदर कहा जाता है द 5 ways टू रन अ मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस. द 5 ways to run a more profitable business. Are you all excited to learn and know what are these 5 ways? और हम उनको कैसे बदल सकते हैं? If you are excited, write excited in the chat box, please. If you are excited, write excited in the chat box. Thank you, Abhay ji. Abhay ji is excited. Yugal ji is excited. Manoj ji is excited. Ramesh ji is excited. Shraddha ji, Manju ji, Nasim ji. Are you all excited or not? Okay. So since you are excited, so let's directly dive into the thing. अभी मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन फिलहाल नहीं कर रहा हूं इस स्लाइड पे. I'll go to that explanation also. 5 ही प्रूवन वेज हैं आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने के. आप जो मर्जी कर लो बिजनेस में, देयर आर ओनली 5 प्रूवन वेज जिनसे आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं. नंबर ऑफ लीड्स टाइम्स योर कन्वर्जन रेट टाइम्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टाइम्स एवरेज रुपी सेल टाइम्स योर प्रॉफिट मार्जिन. दिस इज योर प्रॉफिट. आपके पास कितनी लीड्स आई, आपने कितनी कन्वर्ट की, उन कस्टमर से आपने उन कस्टमर्स ने आपसे कितनी बारी खरीदा, एवरेज कितने का खरीदा और कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिला. राइट, दैट विल डिसाइड योर प्रॉफिट. राइट जी, दैट विल डिसाइड योर प्रॉफिट. सो क्या है ये नंबर ऑफ लीड्स? क्या होती हैं? आप कितने पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हो, दैट इज द नंबर ऑफ लीड्स. हाउ मेनी पोटेंशियल क्लाइंट्स डू यू अट्रैक्ट? अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट रन की है, अगर आपने कोई न्यूज़पेपर में ऐड दी है, अगर आपने कोई इश्तेहार बांटे हैं, तो कितने लोग आपकी फनल में एंटर करते हैं? पोटेंशियल क्लाइंट्स. दे आर योर नंबर ऑफ लीड्स. आपकी सेल्स स्क्रिप्ट्स कितनी स्ट्रांग हैं और आप कितने लोगों को लीड्स में से कन्वर्ट कर पाते हो, दैट बिकम्स योर कन्वर्जन रेट. मान लीजिए आपके पास 10 क्लाइंट्स पोटेंशियल क्लाइंट्स आए, उनमें से 3 ने आपसे सामान खरीदा या आपकी सर्विस खरीदी, तो योर कन्वर्जन रेट बिकम्स 30%. राइट. अब एवरेज रुपी सेल, ये जो कस्टमर्स आपसे खरीद रहे हैं, हर बारी जब वो आपसे खरीदते हैं तो ऑन एन एवरेज वो आपके ऊपर कितना पैसा स्पेंड करते हैं. किसी का ये साइज हो सकता है 5,000 रुपीज, किसी का हो सकता है 10,000 रुपीज. युगल जी फाइनेंस इंडस्ट्री में है तो प्रोबेबली इनका हो सकता है कि मिनिमम कोई बंदा लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है. इट कैन बी एनीथिंग. राइट. सो एवरेज रुपी सेल आपकी क्या है? फिर वो पर्सन साल में कितनी बारी आपसे परचेज करता है. अगर युगल जी की बात करें तो सिप लगवाई तो साल में 12 बारी उसने आपसे परचेज किया. ठीक है. या उसने साल में 4 अलग अलग मौकों पर आपके पास आके इन्वेस्ट किया. ठीक है. अभय जी अगर फार्मा से हैं तो उस कस्टमर ने आपसे साल में कितनी बारी परचेज की, दैट बिकम्स योर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. एंड फाइनली 100 रुपए की चीज में अपनी सारी कॉस्ट निकाल के आप कितना मार्जिन निकाल पा रहे हो, दैट विल ऑल्सो फैक्टर है. राइट. सो सबसे पहले लीड जनरेशन की अगर मैं बात करूं इनटू योर कन्वर्जन रेट, दैट विल गिव यू योर नंबर ऑफ कस्टमर्स. अगर मेरे पास 100 लीड्स आती हैं और मेरा कन्वर्जन रेट है 20% का, तो मेरे को कितने कस्टमर्स मिल जाएंगे उनमें से? 20. राइट. अब ये जो कस्टमर्स हैं, दीज कस्टमर्स, ये मेरे से कितनी बारी खरीदते हैं और एवरेज कितने का खरीदते हैं, दैट विल डिसाइड माई रेवेन्यू.
ये 20 लोगों ने अगर मेरे से साल में ऑन एन एवरेज 3 बारी खरीदारी की और हर बारी 2,000 रुपए की खरीदारी की, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2,000, 1,20,000 का मेरा रेवेन्यू हो गया। और अगर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन 25% है लेट से, तो 1,20,000 के रेवेन्यू को 25% अगर मैं निकालूं तो कितना हो गया हमारा प्रॉफिट? इट बिकम्स 30,000 रुपीज, राइट? तो 30,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। ये मैथ्स क्लियर है सभी को? लीड्स टाइम्स योर कन्वर्जन रेट विल गिव यू योर नंबर ऑफ कस्टमर्स, your number of customers times they buy from you times the average value that they buy will give you your revenue, and revenue multiplied by your profit margins will give you your profit. Good or good? Normal maths, right? Now कई लोगों को लग सकता है जी ये हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो साइकिल है, बाइंग साइकिल जो है, वो बहुत ही लंबा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आर्किटेक्ट है, लेट्स से मनु जी हैं यहाँ पे, ही इज एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट सोच सकता है कि जी एक बारी जिसने मेरे से घर बनवा लिया, अब वो अगले 15 साल 20 साल तो मेरे पास दोबारा परचेज करने नहीं आने वाला, राइट? तो उनको लगेगा कि शायद ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं करती। ठीक है जी, उनको लग सकता है कि ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं करती। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम कि ये जो 5 वेज का सिस्टम है, ये हर बिजनेस में पांचों में से किसी ना किसी एक चीज को लेवरेज करके आपके प्रॉफिट को बढ़ाने का काम कर सकता है। नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है? लोग या तो अपनी लीड्स पे काम करते हैं, या अपनी कन्वर्जन पे काम करते हैं, या अपने रेवेन्यू पे, अपने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं, या अपनी अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग करके एवरेज सेल पे काम करते हैं, या फिर बार बार वो लोगों को, सेम लोगों को, अपने कस्टमर्स को सामान बेच के अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। इन पांचों में से कोई ना कोई चीज हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिनका परचेज साइकिल लंबा है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट की, इनके केस में अगर ये अपना लीड्स और कन्वर्जन रेशो इंप्रूव कर लें, राइट, और अपना जो है एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज कर लें, नंबर ऑफ जो परचेजेस है वो नहीं भी इंक्रीज कर पाए, स्टिल दे वुड बी एबल टू मेक मोर प्रॉफिट। ठीक है जी। बात करें अगर हम रमेश जी की, हु इज इनटू कंसल्टेंसी, रमेश जी अगर किसी कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, राइट, तो उनके लिए भी नंबर ऑफ लीड्स बढ़ाना, अपना कन्वर्जन रेशो बढ़ाना काम करेगा। ठीक है जी। उनके लिए भी सेम क्लाइंट को अपसेल करना, अपनी प्रोडक्ट्स की बंडलिंग करना काम करेगा। उनके लिए भी एवरेज ट्रांजैक्शन बढ़ाने के अलावा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ाना काम करेगा, राइट? सो दिस अप्लाइज टू एवरी बिजनेस। इट्स नॉट कि ये मेरे बिजनेस में तो लगता है, उसके नहीं लगता, या किसी को लगे कि जी हाँ उसके बिजनेस में तो ऐसा हो सकता है, मेरे बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन्स बिजनेस। बिफोर गोइंग ऑन टू टेल यू कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो, लेट अस जस्ट लुक एट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, राइट? कि ये स्ट्रैटेजी क्यों इफेक्टिव है, राइट? डू यू वांट टू see how effective this strategy is? If yes, write effective in the chat box, please. If you want to see how effective this strategy is, please write effective in the chat box. Friends, let's keep it very, very interactive. I'm not going to take a lot of your time on a Sunday evening, but so far that you are here, let's keep it very interactive, because I again guarantee that you are going to take back something to implement in your business. And that is why you should be excited for this thing. चलिए थोड़े नंबर्स पुट इन करके देख लेते हैं। लेट्स से
ये हमारा चार्ट आ गया, नंबर ऑफ लीड्स इनटू कन्वर्जन रेट इनटू कस्टमर्स इनटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू एवरेज रुपी सेल गिव्स यू रेवेन्यू गिव्स यू प्रॉफिट मार्जिन। जो रेड मार्क्ड है हम उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर रिजल्ट्स, राइट, दे आर जस्ट रिजल्ट्स। नंबर ऑफ लीड्स, कन्वर्जन रेट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एवरेज रुपी सेल एंड प्रॉफिट मार्जिन, हम सिर्फ इन 5 चीजों की बात करें क्योंकि इन पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लग रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के। जिनके आगे इक्वल टू आ गया दैट मींस उनको कंट्रोल करने के लिए हम उनके फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सिंपल मैथ्स। मान लीजिए आपको साल में 4000 लीड्स मिलती है, ठीक है जी, और आपका कन्वर्जन रेट है 25%। तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कितने आपको साल के कस्टमर्स मिल गए। इफ यू हैव 4000 लीड्स एंड योर कन्वर्जन रेट इज 25%, हाउ मेनी कस्टमर्स डिड यू गेट? एब्सोल्युटली राइट युगल जी, 1000। यू गेट 1000 कस्टमर्स। अब ये 1000 कस्टमर्स जो हैं ये आपसे 2 बारी साल में परचेज करते हैं फॉर एन एवरेज ऑफ ₹100। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशंस छोटी फिगर्स रख रहा हूं। ये 1000 कस्टमर्स साल में 2 बारी आपसे खरीदते हैं हर कोई, और ₹100 का खरीदते हैं एवरेज। तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया? 2 लाख रुपए, एब्सोल्युटली राइट। और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है 25%, तो आपका साल का प्रॉफिट कितना हो गया? Absolutely right, 50,000. Thank you, Jugal ji and Abhay ji, for being so proactive and interactive in the chat box. Request others also to be excited. हमने शुरू में बात की, learning should be fun. ठीक है जी? Learning should be fun. Don't sit here with this mindset कि हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, क्या ही नया सिखा देंगे। As I said earlier, जो हम करते आ रहे हैं, अगर उनके रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते तो आज हम इस सेशन में नहीं बैठे होते संडे इवनिंग को। ठीक है जी? सो वाइल यू आर हियर, प्लीज पार्टिसिपेट, गिव योर 100% एंड टेक बैक 100% ऑफ माई एफर्ट्स, राइट। सो 50,000 का प्रॉफिट उसके धंधे में किसी के है। अब आपको क्या लगता है अगर मैं आज आपको 300 से के करीब स्ट्रेटेजीज बता दूं इन 5 चीजों को बढ़ाने की, तो आपको क्या लगता है कि आप मिनिमम कितने % हर चीज को बढ़ा सकते हो? मिनिमम 50% से युगल जी, ओके। चलिए हम 50% नहीं मानते, जो अभय जी ने लिखा है एटलीस्ट 10, ठीक है जी। लेट्स टेक कि हमने 10% जो है वो इंप्रूव कर दिया अपना, राइट। लेट्स से वी हैव इंप्रूव्ड इट बाय 10%, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर मेरी लीड्स 10% इंप्रूव हो जाए तो मेरी लीड्स कितनी हो जाएंगी? 4400। अगर मेरा कन्वर्जन रेट 10% इंप्रूव हो जाए तो कितना हो जाएगा? 35% नहीं, जो काफियों का जवाब हो सकता है। इट विल बी 27.5%, 10% ऑफ 25। और अगर ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं 10% तो मेरे कस्टमर्स कितने बढ़ जाएंगे? युगल इन द चैट बॉक्स आई हैव म्यूटेड एवरीवन। 1100 says Abhay ji, and that is the answer I wanted to see in the chat box. यही गलती लगती है सबको। अगर आपका नंबर ऑफ लीड्स 10% बढ़ रही है और कन्वर्जन रेट 10% बढ़ रहा है तो आपके कस्टमर्स 1210 यानी कि 21% बढ़ जाएंगे, नॉट 10%, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर आ रहा है, राइट। कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, विल से युगन भूषण जी, राइट। अब आपकी ट्रांजैक्शंस भी 10% इंप्रूव हो गई हर साल, तो वो एवरेज 2.2 ट्रांजैक्शंस हो गई, और आपका एवरेज रुपी सेल भी 110 रुपए हो गया 10% बढ़ के। तो आपका जो रेवेन्यू है साल का वो कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 2,92,820, which is a massive 46% increase in your revenue. और अगर आप अपने प्रॉफिट को भी 10% बढ़ा लो
27.5 कर लो, तो योर प्रॉफिट विल बिकम almost 80,525 rupees, which, my dear friends, if you do the maths, is a 61% increase in your profit. पहले 50,000 प्रॉफिट था, अब इस 80,000 है ऑलमोस्ट, तो इट इज ऑलमोस्ट 30,000 का इंक्रीज, यानी कि 61% इंक्रीज इन योर प्रॉफिट. नाउ आर यू एक्साइटेड टू लर्न हाउ यू कैन डू दैट? आर यू एक्साइटेड टू लर्न दो स्ट्रैटेजीज कि हम कैसे अपना प्रॉफिट 61% बढ़ा सकते हैं? ग्रेट. बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम, ऑब्वियसली मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बट लेट्स टेक वन सेक्शन. लेट्स टॉक अबाउट लीड्स ओनली. राइट, लीड्स बढ़ाने के हमारे एक्शन कोच के पास वी हैव ऑलमोस्ट 73 प्लस स्ट्रेटजीज, जिनमें से कुछ मैंने यहां पे लिखी है. सब बिजनेसेस में सेम नहीं लगेंगी, किसी में कोई चीज लगेगी, किसी में कोई चीज लगेगी. अगर आप अपने मैगजीन्स में, जो भी आपके ट्रेड मैगजीन्स हैं, आप उनके अंदर अपने बिजनेस को प्रमोट करो. अगर फार्मा सेक्टर की कोई मैगजीन आती है, अगर आर्किटेक्ट्स की कोई डायरेक्टरी बनती है, तो आप उसके अंदर अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करें. ठीक है जी. अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई न्यूज़लेटर चलता है जो सभी इंडस्ट्रीज में जाता है, तो उसमें आप एडवर्टाइज करें. आप अपना पीआर स्ट्रॉन्ग करें. आपकी कंपनी के रेगुलरली प्रेस रिलीजेस हैं. आप कूपन सिस्टम चला दो किसी अपने पार्टनर के साथ कि ये तो हमारे कूपन रख ले, जब भी तू कोई सेल करता है तो एक कूपन हमारी तरफ से डाल दे कि जी इतने % का हमारे को कोई वैल्यू एडिशन हम देंगे अगर वो कस्टमर हमारे पास भी आएगा. तो फ्लायर्स आप प्रमोट करें. डायरेक्टरीज में अपने नाम दे, जैसे इंडिया मार्ट वगैरह पे लोग अपने आप को लिस्ट करते हैं. बाटर करें. यू नो व्हाट बाटर इज? कि आई वुड प्रोवाइड यू माई सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स एंड यू प्रोवाइड योर सर्विसेज टू माई क्लाइंट, सो दैट हमारा जो सर्विसेज है वो ओवरऑल अट्रैक्टिव बन जाए. जब मैं किसी को बताऊंगा कि जब तुम मेरे से काम करवा रहे हो तो तुम्हारे को ये भी एक रिलायबल पर्सन मिल रहा है साथ में, और जब दूसरा पर्सन भी बताए कि जब आप मेरे से सर्विस ले रहे हो तो आपको ये भी साथ में मिल रहा है, तो हमारी लीड्स बढ़ जाएंगी. डेटाबेसेस होते हैं हर धंधे में, उन डेटाबेसेस की लिस्ट परचेज करो. डायरेक्ट मेल स्टार्ट करो, लोगों को फाइंड आउट करके ईमेल्स अपनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में, जिनको आप प्रमोट कर सकते हो. टैक्सेस के ऊपर इश्तेहार लगवाओ. सिनेमाज में एडवर्टाइज करो. इवेंट्स को स्पॉन्सर करो जहां से आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन मिले. जैसे कि एक्सक्यूज मी, जैसे कि अभी किसी ने शुरुआत में कहा था कि ब्रांडिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आप ब्रांड किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? बाय डूइंग स्पॉन्सरशिप्स. फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करवाइए अपनी वेबसाइट को. ठीक है, साइनेज बोर्ड्स लगवाइए. पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल जो है, पीओएस, आपने देखा जब आप किराने वाले के पास जाते हो तो जहां पैसे देते हो वहां पे उसने बड़े सुंदर से एक डिब्बे के अंदर 10 तरह की चॉकलेट्स, गोलियां और सब कुछ रखा होता है. राइट, तो जो पर्सन ने वो नहीं भी खरीदना, वो अट्रैक्ट होके देख लेता है, खरीद लेता है. ठीक है, इसी तरह से आप भी डिस्प्लेज लगाइए लोगों के पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल के आसपास, सो दैट लोगों की नजर जाए वहां पे. अपनी प्रोडक्ट को पैकेज कीजिए. बहुत बारी आपने देखा होगा कि लोगों के पास आप देखते हो पॉलीथीन्स जिसके ऊपर लिखा होता है कोई ना कोई नाम, लेट्स से एक्शन कोच लिखा हुआ है, बिकॉज जब उन्होंने एक्शन कोच से परचेज किया था तो एक्शन कोच ने अपना लिफाफा दिया था जो आज तक चल रहा है. राइट, तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी लीड्स क्रिएट करती है. आपके बिजनेस कार्ड्स बांटिए, नेटवर्किंग फंक्शंस में जाइए, सेल्स पीपल एम्प्लॉय कीजिए, टेली मार्केटिंग करवाइए, कोल्ड कॉलिंग करवाइए. ओल्ड मेथड कोल्ड कॉलिंग का आजकल लोग वो भी करवाने से डरने लगे. राइट, कॉम्पिटिशन चलाइए कि जी आप इस चीज में पार्टिसिपेट करें. जब आप इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा. बट उस तक प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपके पास लोगों का डेटा आ रहा है जिनको आप कोल्ड कॉलिंग भी करवा सकते हो, जिनको आप ईमेल कैंपेन्स में भी डाल सकते हो, जिनको आप फ्लायर्स भी भेज सकते हो. होस्ट बेनिफिशियरीज. होस्ट बेनिफिशियरीज क्या है? मान लीजिए कोई सीए है, युगल जी जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर है, वो कहें कि मैं आपके क्लाइंट्स के लिए एक सेमिनार करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है जी,
आप अपने क्लाइंट्स को इकट्ठा कीजिए, मैं अपना सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, मैं वहां आऊंगा, खर्चा भी मैं करूंगा, और मुझे जितने क्लाइंट्स मिल जाएंगे उनमें से मैं आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे करूंगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ होस्ट बेनिफिशियरी सिस्टम। तो आप देखिए कि किन लोगों का ऐसा टारगेट क्लाइंट सेगमेंट है जो आपके साथ ओवरलैप करता है। व्हेन आई से ओवरलैप, आप दोनों का कंपीटिंग प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो अपना कॉन्टेक्ट स्फीयर आपके सामने नहीं खोलेंगे, राइट? तो उनको बोलते हैं होस्ट बेनिफिशियरीज। इंश्योरेंस वालों के पास, वैसे तो वो इनके कंपटीटर हैं फाइनेंशियल प्लानर्स के, बट इंश्योरेंस वालों के साथ भी अगर कोई सेन माइंडेड हो, सिर्फ लेट्स से जनरल इंश्योरेंस में काम करता हो, तो वो भी आपके लिए होस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है, राइट? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कीजिए। अभय जी, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं फार्मा सेक्टर में, आप देखिए कि किन एफएमसीजी स्टोर्स पे आप स्ट्रेटेजिकली अलायंस करके रखवा सकते हो। ठीक है जी। मनु जी कैन सी कि किस जगह पे जाके वो कौन से प्रोबेबली इंटीरियर डिजाइनर के साथ, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो स्ट्रेटेजिकली अलायंस कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर की भी अपनी गुडविल होगी, तो कई लोग उसके पास आएंगे कि भाई मैंने घर बनवाना है, तो बता किससे बनवाए। तो डू दो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। फॉर रमेश जी वी कैन से कि रमेश जी किसी ऐसे कंसल्टेंट के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करें जहां पे इन दोनों का गोल टकराता ना हो। इवन रमेश जी कैन डू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद सीएस, क्योंकि सीएस को अपने क्लाइंट्स के दुख तकलीफ पता होते हैं। तो सिंस ही इज इनटू बिजनेस कंसल्टेंसी, तो ही कैन ऑलवेज टेक अ गुड नंबर ऑफ लीड्स फ्रॉम द सीएस, right, by paying them a good percentage of the onboarded clients, right? Then go to trade shows, do network marketing, invest in distributors, फ्रेंचाइजी दीजिए, टीम बाइंग इंसेंटिव्स। आप अपनी टीम को, लोग एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट जो है वो छोड़ रहे हैं। वो क्या है? अपनी टीम को बेचना। एप्पल के जितने एम्प्लॉइज हैं उन सभी को एप्पल एक हेफ्टी डिस्काउंट देता है ऑन बाइंग देयर प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज वाई प्रोबेबली अगर वो नहीं भी अफोर्ड कर पाते, बट जब उनको वो 20-25% का साल में एक बार डिस्काउंट मिल जाता है, तो दे आर मोर इंक्लाइंड टू बाय कि हम एप्पल का ही प्रोडक्ट खरीद ले, क्योंकि 20-25% डिस्काउंट मिलके हमें ये उतने का ही पड़ रहा है जितने का बाहर अगर हम जाएंगे तो कोई चीज हमें मिलेगी, राइट? सो अपनी टीम को आप बाइंग इंसेंटिव दीजिए सो दैट दे ऑल्सो परचेज फ्रॉम यू, राइट? इवेंट की मार्केटिंग कीजिए, गूगल एडवर्ड्स पे कीजिए, सोशल मीडिया पे कीजिए, फंड रेजिंग कैंपेन्स कीजिए। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। मेक सेंस? क्या आप बता सकते हैं व्हाट्सएप जूम चैट के अंदर कि इनमें से कौन सी एक वो स्ट्रैटेजी है जो लीड्स जनरेट करने के लिए आप अपने बिजनेस में कल से या परसों से लगाने वाले? एनी वन स्ट्रैटेजी, just one. I do not need two, I just need one. Cold calling, social media, says Abhay ji, and cold calling says Yugal ji. Ramesh ji, Manju ji, Nasim ji, Shraddha ji, मनोज जी, क्या लगाने वाले हैं सर अपने बिजनेस में? कौन सी लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो आप लगाने वाले हैं अपने काम में? प्लीज जरा देख के बताएं। यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन अ संडे इवनिंग, मैं बार बार याद करवा रहा हूं। लेट्स मेक इट काउंट। एड्स, सेज नसीम जी, ओके। श्रद्धा जी, मंजू जी, रमेश जी, मनोज जी। पब्लिक रिलेशन सेज मनोज जी। ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनलाइन सेज मनोज जी। ऑसम, ग्रेट। ट्रेड एक्सचेंज ऑल्सो ऑसम, जुगल जी, great, great. So these are just about 30 strategies that I have shown on screen, but सिर्फ leads के लिए हमारे पास almost 70 plus strategies हैं. So there are n number of strategies that you can apply. Similarly, Shraddha ji says seminar events.
Shraddha ji, if you can let us know in the chat box only what field you are into, so that we can also relate कि आप to what you are saying. If you can just let us know कि आप किस काम में है. Facebook ads says Manju ji. Assertive communication and leadership coach. Great, great. So have you done seminar events earlier, Shraddha ji? Not now. Awesome. So start doing ji, and I'm sure that you will get a lot of leads from seminars, which you can obviously, उसके बाद datas and mailings and cold calling उन पे होनी चाहिए, which you can then convert into clients. Right? So what I'm going to share now in the Zoom chat box are 2 documents. Let me first share them. You can download them and then let me talk about it. कि उसका क्या है. Okay, started YouTube channel. Great, Shraddha ji. Shraddha ji, it would be good if you can just come on camera, ma'am. It would be more interactive that way. And being a coach, I'm sure you would also love that your participants, whenever you do seminars and webinars, are on camera on mode. Just if you're comfortable. If you're not, then it is fine. Yes, thank you so much. So I am sharing a document in the chat box. You can download that document. You can first please download the document, then I'll let you know कि हम क्या कर सकते हैं. Everyone has downloaded? Okay, great. So इसको खोलने से पहले let's have a look at this screen. So this is almost 300 plus strategies that we share with our clients. ठीक है जी? Almost 300 plus strategies that we will be sharing with our clients. Leads की मैंने आपसे बात की. Conversion rate आप कैसे improve कर सकते हो? By giving written guarantees. आप अपनी खुद का ब्रांड प्रमोट करके, अभय जी, विदाउट, इंस्टेड ऑफ सेलिंग समबडी एल्सेस प्रोडक्ट, गेट योर प्रोडक्ट डेवलप्ड, अपना खुद का ब्रांड लगाइए, आपकी कन्वर्जन भी इंप्रूव होगी क्योंकि मार्जिन लोगों का बढ़ जाएगा, तो उनको आपसे परचेज करना प्रॉफिटेबल लगेगा. ठीक है जी? वैरायटी इंक्रीज करके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देके, बेनिफिट्स की लिस्ट को भी आप प्रिंट करवा सकते हैं कि हमसे काम करवाने का आपको क्या बेनिफिट है. Use testimonials of your clients, right? Make an offer that people can't refuse. टीम मेंबर की प्रोफाइल्स आप लगा सकते हो कि हमारी टीम में कितना टैलेंट है, why you should buy from us. ठीक है? अपने अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले कीजिए, राइट? एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, जैसे श्रद्धा जी इज इनटू लीडरशिप कोचिंग, तो इफ शी, अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने यूट्यूब अपना चैनल शुरू किया है, तो इफ शी स्टार्ट स्प्रेडिंग education, so when people come on to her YouTube channel and then they get in touch with her, तो उनका conversion improve हो जाएगा because they already see her as an authority in the field, right? Similarly, number of transaction बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Under promise and over deliver, सबसे important चीज. Promise कीजिए कि 10 दिन में डिलीवरी देंगे, लेकिन डिलीवरी 8 ही दिन में दे दीजिए. ठीक है जी? अंडर प्रॉमिस एंड ओवर. ये सिर्फ टाइम की बात नहीं है, हर चीज में अपनी सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन और कन्वीनियंट बनाइए. रिलायबिलिटी इंक्रीज कीजिए. व्हेन वी से रिलायबिलिटी, मतलब वी विल रिस्पॉन्ड टू यू इन 24 आवर्स एंड दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ एवरी टाइम. ठीक है? मान लीजिए आज आपका कोई एसी वाला हो, एसी सर्विस वाला हो, और वो ये प्रमोट करे कि जी व्हेनेवर योर एसी इज डाउन,
वी विल रिपेयर इट इन 3 hours और योर सर्विस इज फ्री। क्या लोग उसके साथ जुड़ने में इंक्लाइंड होंगे कि नहीं होंगे? बिकॉज उनको पता है कि 3 घंटे में हमारा एसी जब भी खराब होगा तो ठीक होगा, राइट? तो गारंटीज दीजिए, लोगों के साथ रेगुलर टच में रहिए। बहुत सारे आपके कस्टमर्स को ना, माय डियर फ्रेंड्स, ये भी नहीं पता होता कि आप क्या क्या चीज में डील करते हैं। बिलीव मी ऑन दिस। मेरे भी कई दोस्त हैं जो कई बार कहते हैं अच्छा यार तू ये भी करवाता है। दे डोंट नो दिस बिकॉज समवेयर आई हैव प्रोबेबली फेल्ड टू लेट देम नो कि मैं क्या क्या करवाता हूं। ऐसे ही हमारे क्लाइंट्स को भी हमेशा नहीं पता होता कि हम क्या क्या करते हैं। सो अपना पूरा का पूरा रेंज जो है वो उनके सामने रखिए आप, राइट? सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट्स दीजिए, एएमसीज दीजिए, राइट? क्लाइंट्स की जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, वो आप रखिए। प्रोडक्ट ऑफ द वीक, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ निकालते रहिए कि जी प्रोडक्ट ऑफ द वीक इज दिस, ये खरीदेंगे तो इस पे ये ऑफर है, तो लोग सडनली उस पे बूस्ट हो जाती है उस चीज की सेल। ठीक है? आस्क देम टू कम बैक। जस्ट कॉल योर क्लाइंट्स, हाउ इज इट गोइंग सर, आपने पिछली बार उस दिन परचेज किया था, कैसा चल रहा है सर, आगे का कोई प्लान है? जस्ट कॉल देम। वो कहते हैं ना, आस्क एंड यू शुड बी आंसर्ड टू। सो एटलीस्ट आस्क, गेट इन टच विद योर ओल्ड क्लाइंट्स। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ाने का तरीका है कि कीप इन टच विद योर क्लाइंट्स। अपने नए नए ऑफर्स, नए नए प्रोडक्ट्स उनको सब भेजते रहिए, उनको विश करते रहिए बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे। सर्विस कॉल करते रहिए कि जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हमारी प्रोडक्ट में, हमारी सर्विस में। एंड इट शुड ऑलवेज एंड विद एनी रेफरल्स फॉर अस, राइट? मैंने युगल जी से सर्विस ली और मैंने अपने फ्रेंड को रेफर कर दिया, वो भी एक तरह से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेरी ही बढ़ रही है। ठीक है जी? सो इसके लिए भी वी हैव ऑलमोस्ट 68 थिंग्स जो हम यूज कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन द एवरेज सेल, प्राइजेस बढ़ा दीजिए। एंड वी कैन ऑलवेज वर्क विद यू टू लेट यू नो व्हाई इट वॉन्ट हार्म। प्राइजेस बढ़ाने से सबसे ज्यादा कौन डरता है? खुद बिजनेस ओनर, और कोई नहीं डरता, राइट? तो व्हाई इट डजंट हार्म ये हम सिखाएंगे। क्रॉस सेल कीजिए, डाउन सेल कीजिए, ये स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता। डाउन सेल कीजिए। अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है 10,000 की चीज खरीदना चाहता है, आप उसको डाउन सेल कर दो कि नहीं नहीं सर मेरे को नहीं लगता इसकी जरूरत है, आप ये 8,000 वाली चीज खरीदो जी, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ट्रस्ट बड़ा बनेगा उसका उसके ऊपर कि यार मैं ये तो 10 ले सकता था मेरे से, मैं तो खरीदने ही आया हूं, पर ये तो मेरे को 8 में ही चल रहा है। तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। ग्रेट अभय जी, इफ यू आर डूइंग दिस, ऑसम, एंड इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। यस सर, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट ब्रीड्स ट्रस्ट। लोगों को लगता है कि यार जब ये मुझसे 10 ले सकता था, 8 में मुझे छोड़ रहा है, मींस ये बंदा सही है, राइट? पेमेंट टर्म्स अच्छी करिए उनके साथ ऐसी कि वो खरीदने को प्रॉम्प्ट हो जाएं। एक्सक्लूसिव लाइंस, इन स्टोर मर्केंडाइजिंग, पॉइंट ऑफ सेल, हर चीज अपनी ऐसे कीजिए जिससे आपकी एवरेज सेल जो है वो, बल्क बाय डील्स चलाइए। ठीक है? गिफ्ट दीजिए परचेजेस के साथ जिससे आपकी परचेजेस बूस्ट हों, राइट? हर चीज विल लीड टू इंक्रीज इन एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड देन योर प्रॉफिट मार्जिन्स। अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बूस्ट कीजिए, डिस्काउंट्स नहीं देने। सोच लीजिए कि डिस्काउंट्स नहीं देने। ठीक है? एंड अगेन एक्शन कोच कैन टेल यू व्हाई दिस स्ट्रेटजी इज एक्चुअली सेल्फ हार्मिंग, व्हाई यू शुड नॉट गिव डिस्काउंट्स, राइट? चलिए एक ऐसे ही ओवर द टॉप इसकी फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। 100 रुपए की चीज है, 80 रुपीज की आपको घर में पड़ रही है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ उसमें? 20 रुपए। ठीक है जी? 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ। आपने महीने में वो 50 आइटम्स बेची, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1000। ठीक है जी? 1000। लेट मी अनम्यूट यू ऑल, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा। सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। 1000 रुपए का प्रॉफिट आया आपके पास। मान लीजिए आपने वो चीज जो है 100 की बजाय 95 रुपीज, या चलो 95 भी छोड़ो, सिर्फ 2% डिस्काउंट की बात करते हैं,
₹98 में ऑफर कर दी, आपका प्रॉफिट कितना हो गया? घटके 18 रुपए। ₹1000 का प्रॉफिट अब बनाने के लिए आपको कितनी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी? 1000 डिवाइडेड बाय 18 कितना हुआ युगल जी? 1000 डिवाइडेड बाय 18, 55 सेल्स आपको करनी पड़ेंगे। 55.55, 55.55, विच इज 11%। यानी कि सिर्फ 2% डिस्काउंट देने पर जब तक आपकी सेल 11% नहीं बढ़ जाती, तब तक आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मैच नहीं होने वाला। तो क्या डिस्काउंट देना फायदेमंद है? क्या आपको लगता है डिस्काउंट देके 11% सेल जंप हो जाएगी? 2% का डिस्काउंट की अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ये 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगी। So that is why giving discounts is never a good strategy. Always add value instead. ठीक है जी, always add value. कि जी मैं 100 पे आपको ₹2 का डिस्काउंट नहीं दे सकता। आप साथ में मुझसे टॉफी ले जाओ एक, जो कि ₹5 की है, खरीदोगे तो आपको वो 50 पैसे की ही पड़ी है, तो नेट आपका डिस्काउंट 50 पैसे ही गया उसके ऊपर, राइट? परसीव्ड डिस्काउंट कितना मिल गया उसको? ₹5। इसीलिए लोग ₹5 में चॉकलेट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनको घर में ₹2.25-3 की ही पड़ी होती है, राइट? तो जो ₹95 उन्होंने देने थे हमें, 95 काट के 5 देने थे वापस, वो चीज एक्चुअली उनको 97 में पड़ गई, उनका प्रॉफिट बढ़ गया, राइट? सो नो डिस्काउंटिंग, इसको अपनी जिंदगी का धर्म बना लीजिए, अपना खुद का लेबल बेचिए, राइट? सी और डी। सी कस्टमर कौन होते हैं? कांट डील विद, जिनके साथ हम डील नहीं कर सकते। और डी कौन होते हैं? डेड, जिनका पैसा नहीं आता, जिनका स्यापा ही पड़ा रहता है हमेशा, उनको छोड़ दीजिए। डू अवे विद सी एंड डी ग्रेट क्लाइंट्स। अगर पॉसिबल है तो सी वाले को बी में कन्वर्ट कीजिए, योर बेसिक क्लाइंट्स, और बी वाले को ए में, ऑसम क्लाइंट्स में कन्वर्ट कीजिए। अदरवाइज लेट देम गो। सो दीज आर सम स्ट्रेटजीज बाय विच यू कैन increase your profit margins also. So using these 300 plus strategies, you can all improve your every particular aspect by 10%। मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम, राइट? और आपको पता है कई इंडस्ट्रीज में वो और ज्यादा बूस्ट हो सकता है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री में इट कैन बी इवन मोर, राइट? तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट अब भेजा है, इफ यू नाउ जस्ट ओपन दैट डॉक्यूमेंट, if you can just open that document, उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड स्टार्टिंग में सबसे पहले सेम चीजें बताई हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। सेकंड पेज पे एक एग्जांपल है, तो वो आप बाद में कर सकते हैं। थर्ड पेज पे वो एग्जांपल कंप्लीट करके दिखाई गई है। नाउ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज दिस फोर्थ पेज। अभी के लिए हमारा इंटरेस्ट क्या है? जो फोर्थ पेज है। आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ। अगर आपको पता है आपकी करंट लीड्स, आपका कन्वर्जन रेट कितना है, आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर कस्टमर कितनी है, आपकी एवरेज सेल कितनी है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट ओवर हेयर योर एग्जिस्टिंग नंबर्स। देन राइट इन हेयर कि अब आप क्या नई चॉइस करने वाले हो, कौन सी नई टेक्निक लगाने वाले हो, जिससे कि आपकी ये चीज बढ़ जाएगी और कितने % बढ़ जाएगी। वो परसेंटेज लिख के नई फोरकास्ट बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी के लिए साल में 100 लीड्स जनरेट कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद होस्ट बेनिफिशियरी अलायंस, आपको लगता है कि उससे आपकी 5% सेल इंप्रूव, लीड्स इंप्रूव हो जाएंगी, तो यू कैन से कि द न्यू फोरकास्ट इज 105। अब ऑनेस्टली मेरे को एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, कौन कौन अपनी लीड्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन रेशो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू और मार्जिन अभी बता सकता है? नहीं बता सकते सर। यस, तभी रिकॉर्ड, हाँ the smile on the रिकॉर्डिंग faces says all.
right? If you are like most business owners, my dear friends, हमें पता ही नहीं कि हमारे को साल में कितनी लीड्स मिल रही हैं, हमारा कन्वर्जन रेशो क्या है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, हमारी एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, और एक कस्टमर हमसे साल में कितनी बारी खरीदता है। बहुत कम बिजनेस ओनर्स हैं जिनको ये बात पता होती है, और जिनको ये पांचों पता हो ऐसा मुझे नहीं कोई मिला आज तक। मुझे कोई नहीं मिला जिसको ये पांचों नंबर पता हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरी फील्ड में जिसको अपने ये 5 नंबर्स पता होंगे वो जरूर इन पे काम भी कर रहा होगा, तो शायद उसको मेरी जरूरत ही नहीं है। राइट, एज सिंपल एज दैट। सो आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ गाय जिसको अपने ये पांचों नंबर्स पता हो। दैट्स द प्रॉब्लम, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम every business owner is facing. But there are solutions, obviously. There are solutions. Dreams जो हैं वो पूरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे नहीं होते. You have to start thinking like an entrepreneur, not like a lala mentality. कि रोज शटर उठाना है, सारा दिन सीट पे बैठना है और रात को शटर गिरा के जाना है. उस मेंटालिटी को छोड़ना पड़ेगा. फ्यूचर का क्या प्लान है, बनाइए उस प्लान को. जैसे भी जो भी आज आप कर रहे हैं उसे बदलने की जरूरत है. बिकॉज जो आप हमेशा से करते आए हो, अगर आप वही करते रहोगे तो जो आपको हमेशा से मिलता आया है वही आपको मिलता रहेगा. राइट? सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन, either yourself or with a coach. और अगर इन स्ट्रैटेजीज से आपके साल के 300 घंटे फ्री अप हो जाते हैं तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, राइट मी इन द चैट बॉक्स, आप उन 300 घंटों के साथ क्या करने वाले हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस 300 आवर्स? इफ आई कैन टेल यू that how you can free up 300 hours of your time per year, what are you going to do with that time? Are you going to spend it with the most important people in your life? Your family, your wife, your kids, your parents, your friends. Traveling का शौक है तो are you going to travel? Listening to music का शौक है तो क्या आप leisure के लिए म्यूजिक सुनने वाले हो? Yes, my dear friends. Yes, we all will do that. Quoting Jim Rohn, who is one of the, सबने सुना होगा इनका नाम, he is one of the greatest speakers and an author. Never wish your life were easier. Wish that you were better. And work harder on yourself than you do on your job. और ब्रैड शुगर जो कि हमारे फाउंडर है, what he says, आप 5 साल में कहाँ होगे ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आज आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, आज आप किन लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, और क्या एक्शंस आप लेते हो. इट विल डिसाइड कि आप 5 साल में कहाँ होंगे. यहां से आप 2 डायरेक्शंस में जा सकते हो. ईदर यू कैन ट्राई टू स्टार्ट ट्राइंग टू इंप्रूव योर बिजनेस ऑन योर ओन, और you can say that I am interested in getting massive results in my business. मुझे बताओ मेरी options क्या है. Right? What are my options? Do you want to know what are your options? Do you want to get massive results in your business? Yes or yes? Thank you, Abhay ji, for doing the selling for me before I sell for myself. So what is business coaching? The option is go for a business coach. कोचिंग क्या है? रमेश जी हमारे एक अच्छे बिजनेस कोच हैं. कोचिंग एक बिजनेस अप्रेंटिसशिप है जहां पर हम आपको हेल्प करते हैं आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने में, सो दैट वो आप जो इन्वेस्टमेंट हम में करते हो उसको मेनी टाइम्स ओवर पे ऑफ कर देती है. राइट? इट पेज इटसेल्फ ओवर मेनी टाइम्स. राइट? और जो एजुकेशन इन द प्रोसेस आपको मिल गई वो तो आपकी सारी जिंदगी है ही है, वो तो हम वापस लेके नहीं जा सकते.
We really believe that when you work with a business coach and especially an action coach की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए आफ्टर से अराउंड 12 months. तब तक यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एंड इतना आपकी लर्निंग हो जानी चाहिए कि आप किसी बिजनेस को भी देखो तो उसको ग्रो करने की आपको लर्निंग और एजुकेशन मिल जानी चाहिए, राइट? सो जब आप एक बिजनेस कोच के साथ काम करते हैं तो आप सीखते हैं कि आप कैसे ज्यादा कैश फ्लो, कैसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कैसे टीम वर्क क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपना टाइम फ्री अप कर सकते हैं, राइट? जिंदगी में हर किसी को कोच की जरूरत है. नो मैटर हाउ टफ यू थिंक यू आर, यू कांट डू दिस ऑन योर. ये टाइगर वुड्स की स्टेटमेंट है, हु इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट गोल्फर दैट दिस this planet has seen, right? When he says about his coach, Virat Kohli needs a coach, Muhammad Ali needed a coach, every great actor needed somebody to coach him, every great singer needed a coach, right? Everybody needs a coach, and so does, my dear friend, you. 12 महीने बाद you will arrive somewhere, but the question still is, आप कहां पहुंचते हैं वो आज के आपके डिसीजंस जो हैं वो डिसाइड करेंगे. डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू टू बी वर्किंग इन द बिजनेस, और गोइंग दिस डे फॉरवर्ड यू विश टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बिजनेस? यू नो यू हैव मेड द राइट चॉइस और गुड डिसीजन जब वो चॉइस या डिसीजन आपके मन में थोड़ी एक्साइटमेंट या डर पैदा करे. तो अगर आज आपको लगता है कि इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, तो माय डियर फ्रेंड्स, इफ वो फियर है, एक्साइटमेंट है, then you can think that yes, you are making the right decision.